السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کی ازلی برکات ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے اس میں جو مانگیں قبول ہوتا ہے، جو مانگیں ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگیں ملے، جو مانگیں قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان کی، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے۔ بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا، اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے تھے۔ اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں، ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا۔ اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔
उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले पैसे दे, आज की रोटी हो जाए कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवरी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजों पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे ये बता दो, तुम्हारी जिंदगी में ये सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट में, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकालता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया था, बख्त नहीं दिया था। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा उसको। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नामी मांगे मुझे देनी पड़ेगी।
शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, अब्बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिल के दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गया। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है, वो भूल गए, वो भूल गए। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं। कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं। कितने लोग हैं और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुकहा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना यह सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बुसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है। मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे, ये नफिल वाला अमल करने। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12।
ये पढ़ लें। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गई। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था। इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाते। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते थे। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी और अभी भी देती है और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। हाँ, ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं। पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी था। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आज कौन सा दिन है? बुध है। बुध की फजर से लेकर जुम्मे की मगरिब तक, बुध की फजर से लेकर जुमे की मगरिब तक एक अमल होता है और इसमें एक सातें होती हैं, खासुल खास सातें होती हैं जो सिर्फ होती इन 3 दिनों में है, फजर से मगरिब तक। फजर बुध की, मगरिब जुमा की, सातें होती हैं और इन सातों में ही एक निजाम चलता है। और जो इन सातों में वजीफा तस्बीह खास अमल कर ले उसके लिए गैबी निजाम चलता है, बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कहा था कि कुत्ती ने बच्चे दिए हैं, कि जी 8 बच्चे दिए, कहां गए? कि सारे मर गए। कसरत जिंदगी में खत्म हो जाएगी, बरकत कभी खत्म नहीं होगी। बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, बरकत है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? बरकत नहीं। और कुत्ती खत्म हो जाती है, कुत्ते के खत्म निजाम हो जाते हैं।
अगर कुत्ते को अल्लाह ने करना होता तो सड़कों पे कुत्तों के रेवड़ होते जितने कुत्ते बच्चे देते हैं, और बकरी को अल्लाह ने बना फैला के दिखाया है, और एक पैगाम है कि बरकत ये है, कसरत वो है। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। या आज की रात बरकत समेटने की रात है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, उनकी शादियों के लिए। रिश्ते नहीं हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, मर्द भी बहुत हैं, औरतें भी बहुत हैं, रिश्ते नहीं हैं। फिर रिश्ते हैं तो मुझे उस दिन बंदा कहने लगा, सिर्फ हमारी ये तस्बीह खाने के जो यूनियन काउंसिल है, जिसमें तस्बीह खाना भी है लाहौर का, मुझे ये ग्राफ दिखाया, इतनी तलाकें रजिस्टर्ड हुई हैं। कहने लगा आपने फलां का सुना था, उन्होंने इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए शादी पे लगाया, 1 महीना शादी नहीं चल सकी। ऊपर से फैसले नहीं हुए। पहले दिन से मां ने, बाप ने कहा बेटी डिग्री, बेटी फलां लैंग्वेज, बेटी कंप्यूटर ट्यूटर, सब कुछ। मैं इसका इनकार नहीं करता। बेटी को यह नहीं कहा कि बेटी बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है, बरकत भी कोई चीज होती है, बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है। वो तो पहले दिन नहीं बताया, पहले दिन उसको एहसास और इदराक ही नहीं है, ये भी कोई चीज होती है। ये इन रातों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। इन रातों में इन चीजों की कदरदानी करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, भिखारी बनने वाला, मोहताज बनने वाला फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। 7 बहनें थीं, 7 बहनें थीं। एक भाई हुआ, एक भाई हुआ। एक साहब कहने लगे मेरी बहन कहती थी, जो मेरी तीसरी बहन थी, उस तीसरी बहन की तरफ मेरे वालिद ने एक दुर्वेश से पूछा कि इनके बख्त और मुकद्दर का मैं क्या करूं। कहा कि रमजान में एक रात आती है 11 और 12, उसमें 12 नफिल पढ़ लेना, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लेना। कहा कि वो जो 2 पहले थीं वो तो बेचारी रुल गई, अल्फाज थे उनका कुछ ना बचा। चूंकि नफिल पढ़े थे तीसरी में, और तीसरी के बाद जो रब ने सबको बख्त और भाग लगाए, जो रब ने अता किया, जो रब ने करम किया, जो रब ने शफकत फरमाई, अनोखी दुनिया फिर कहा बन गई, हैरत अंगेज दुनिया बन गई, अनोखी दुनिया बन गई। किस्मत के नसीब और मुकद्दर अपने होते हैं, नसीब और किस्मत के मुकद्दर अपने होते हैं। रात की बात है, ये मेरे बच्चे बैठे सहरी में, एक दूसरे से सहरी भी खा रहे, छेड़छाड़ भी कर रहे, और मैं आप चुप करके बैठा सोच रहा था, अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें। तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है? क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब होगा, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ। और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की तो 2 उंगलियों के दरमियान है। मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे। दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं। वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, फिर फर्शों पे फैसले हमारे मुआफिक होंगे।
ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से फैसले की रातें हैं, ये अर्शों से गैबी निजाम लेने के रास्ते हैं, ये अर्शों से। ले लें फैसला करवा लें, ले लें फैसला करवा लें, फैसला करवा लें। दूर दूर से बंदे, पूरी दूर से 3 दिन 5 दिन का सफर करके मेरे बंदे मेरे परदादा के पास आते थे। 1933 में उनका विसाल है, और उनसे आके अमल लेते थे। या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी का अमल लेते थे। उनको बड़ों से खानदानी इजाजत थी, अमल लेते थे। आज की रात वो अमल हो जाए, आज की रात वो अमल हो जाए, और फिर नफल पढ़े जाएं, हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा, का कमाल हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पढ़ने वाले की वजह से सबकी कबूल हो जाती है, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें चंद की वजह से सबकी दुआएं कबूल होती हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से कबूल हो। उसके जिक्र की बरकत से जब फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, उन फरिश्तों का नूर ऐसा होता है, अल्लाह उनकी वजह से कबूल कर लेता है। नूर ऐसा होता है। और फिर फरमाया, यहां तक एक वाकया सुन ले, वाकया सुन ले। शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार यहां करीब है। उनकी खिदमत में एक बंदा आया, आके उनकी महफिल में बैठा, दुआ मांगी, मसले थे, आपने जिक्र कराया, तस्बीह पढ़ी, दुआ की। वो कहने लगा, कुछ अरसे के बाद आया, शेख रात को ख्वाब में मैंने देखा कि एक जिन कहने लगा कि मैं उस महफिल में बैठा था, उस महफिल में बैठा था, मेरे साथ एक अल्लाह वाला जिन और भी था, वो उस महफिल में बैठा था, उसकी वजह से तमाम अहले महफिल की दुआएं कबूल हुई थी। तो शेख से पूछा, शेख ऐसा था? कहा, सच कहता है, जिसने तुझे ये बात कही उसने तुझे अपना ये नाम बताया होगा। हाँ हाँ, ये नाम बताया। कहा, ये हुलिया भी होगा। कहा, यही हुलिया है। और कहा, वो सच कहता है, अहले महफिल में कोई बंदा इस काबिल नहीं था जिसकी लिए वजह से दुआएं कबूल हों। जब जिक्र हुआ, कुछ नेक जिन्नात भी उसमें मौजूद थे। उन नेक जिन्नात में एक जिन ऐसा था जिसकी उम्र लंबी थी, और अल्लाह पाक ने उसकी वजह से सारी अहले महफिल की सारी दुआएं कबूल कर दी। फरिश्ते आते हैं, जिन्नात आते हैं, नेक लोग आते हैं, सालेहीन आते हैं, और उनकी वजह से दुआएं कबूल हो जाती हैं। बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, अताओं के दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे एक जवान की बात याद आई। कहने लगा, मैं आता था तो आप जब कहते थे कि अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी दुआएं मांगो, अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए मसाइल पैदा नहीं करेगा। ये आज से कोई 22-25 साल पहले की बात उसने बताई, उससे भी पुरानी। कहा, उस वक्त समझ नहीं आती थी, मैं दुआ मांग लेता था, दिल से नहीं मांगता था, बस ऐसे मांग लेता था। अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, तो मेरे बच्चों का। कहा, आज पता चला कि वो दुआएं मेरे बच्चों के काम आ रही हैं। औलाद जवान हो गई है, मसाइल जवान हो गए हैं। अम्मा फरमाती थी, औलाद जवान हो गई, मसाइल जवान हो गए। अब पता चला कि उसकी मदद की कितनी मुझे अशद जरूरत है, उसकी मदद की मुझे कितनी अशद जरूरत है, कितनी अशद जरूरत है। हमारे सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कहने लगे कि हम बाजार में गए, जुमा बाजार लगता था पहले, बाजार में गए तो एक साहब ने हमें आवाज दी नाम देख करके, हम मुझसे कुछ नहीं खरीदते, तो हमने हैरान हुए कि नाम कैसे जानते। कहने लगे, आप फला नहीं? बीवी का नाम लिया, आप फला हैं? हाँ। कहा, फला को जानते थे?
ہم تو اس کی شادی میں آئے تھے، کہہ رہے میں انہی کا بیٹا ہوں. ہیں؟ اس نے پھل فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، کہا مجھ سے کچھ خرید لیں. آج میری کوئی چیز نہیں بکی. اور کہنے لگے جب اس کی شادی ہوئی تھی نا، اس کے ماں باپ کی، اس کے والد کی جب شادی ہوئی تھی، اس شادی میں ہم بھی تھے. ہر خاندان کے لیے جو بھی آئے تھے چاندی کے سیٹ تھے بہترین بنے ہوئے، انہی میں کھانا دیا گیا اور کہا جو کھانا کھائے سیٹ ساتھ لے جائے. کہاں بخت ملا تھا پھر اس کو، کہاں مقدر ملا. اور کہا کہ آدھے لاہور کی جائیداد ان کی تھی، بڑی بڑی مجھے باقاعدہ نام گنوائے. لیکن بیٹا کہتا ہے آج مجھ سے تھوڑا سا سامان لے لے، آج میری کوئی بکری سیل نہیں ہوئی، مجھے کسی نے کچھ خریدا نہیں. یہ اسی کی اولاد تھی جس کے باپ کی شادی پہ جو آیا تھا. اس جوان کو اٹھاؤ. جو آیا تھا چاندی ساتھ لے گیا تھا، ساتھ لے جاؤ. اسی میں کھایا، اسی میں پیا، اور وہ سارا سیٹ ہر بندہ ساتھ لے گیا، چاندی کے برتن ساتھ لے گیا. یہ راتیں ہیں منوانے کی، یہ راتیں ہیں لینے کی، یہ راتیں ہیں گڑ گڑانے کی، یہ راتیں ہیں اس کے خزانوں سے عطائیں، بخشش، برکت، بخت، نصیب، مقدر، عافیت. یہ لینے کے راستے بھی ہیں، راتیں بھی ہیں. یہ لینے کے یہ راستے ہیں. اس پہ کیسے توجہ ہوگی، اس پہ کیسے توجہ ہوگی، اور اس کا ادب کیسے ہوگا، اس پہ توجہ کیسے ہوگی اور اس پہ ادب کیسے ہوگا، عظمت کیسے ہوگی. جتنا ادب ہوگا، جتنی عظمت ہوگی، اتنا اس کی برکت ہوگی. ہم نے 3 دن پہلے اللہم اغفر لی کا وظیفہ پڑھا. 3 دن پہلے ابھی رات گزرا یا مسبب الاسباب. آج خوش قسمت ہے، آج پہلی رات ہے جس میں 3 دن ہم مستقل پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اور جن کو نہیں آتا وہ صرف یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں گے. یہ وہ طاقتور عمل ہے. صرف 12 تسبیحاں صبح شام 12 دن پڑھیں، 12 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوئے تیرے حق میں فیصلے، پھر تیرے کرنے میں کمی ہے، 12 دن اور پڑھ. نہیں ہوئے پھر 12 دن اور پڑھ، ورنہ تیرے کرنے میں کمی ہے. یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی ابتدا ہم آج سے کر رہے ہیں. یہ وہ طاقتور عمل ہے، اور یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی طاقت اور قوت جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے. یہ بہت غور سے سنیے گا، جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے. اس لیے فرمایا جس کے جنازے میں 40 آدمی ہو، اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت کر دو. اور فرمایا جس محفل میں 70 افراد ہوں، 70 افراد ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کی دعائیں قبول کر لو. یہاں تو کتنے بے شمار 70 بیٹھے ہیں. جس مجمع میں جتنا بڑھتا ہوا مجمع ہوتا ہے، ہر کیا درد، غم، ان کی آپس میں کڑھن وہ ایسی ہوتی ہے کہ رب کے فیصلے کریمی کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ 12 تسبیح صبح شام گڑ گڑا کے پڑھ لیں، میں جس ترتیب سے بتاؤں 12 دن پڑھ لیں، بولیں. اگر پڑھیں تو میں ترتیب بتاؤں، پھر وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے، وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے. ہاں، جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے، جو ڈوب کے پڑھتا ہے، جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے، جو ڈوب کے پڑھتا ہے، وہ فیصلے کروا لیتا ہے. صبح شام اول آخر 12 دفعہ درود شریف، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. کتنا وقت لگتا ہے؟ کس کا کیا تجربہ ہے؟ ہاں جی، کتنا وقت لگتا ہے اس کے 12 دفعہ پڑھنے میں؟
40 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट, चलो 40 मिनट कर लेते हैं। तवज्जो वाले, ध्यान वाले, यकसुई वाले, गिड़गिड़ा के पढ़ने वाले, 40 दिन, 12 दिन करना है ये अमल, 12 दिन। खवातीन हर हाल में कर सकती हैं, 12 दिन ये अमल करना है। अवल आखिर दरूद पाक के साथ, फिर मैं हूं और अल्लाह हो और कुछ ना हो। यकसुई, ध्यान, तवज्जो। फिर इसकी इजाजत दूं? बोले, इसकी इजाजत दूं? दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारते हैं उसी जोर से वापस आती है। दुनिया कहती है और बार बार कहती है कि आपका और आपकी नस्लों का इस निजाम का जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, आफियत का, उतना जल्दी हमारे काम बन जाते हैं। क्या ऐसा है? जिसके साथ इसका तजर्बा वह हाथ खड़ा करे। ये हाथ है, ये हाथ है, ऊंचा करें हाथ, ये हाथ है, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे। बस अगर नफा ज्यादा पाना है, खैर ज्यादा पानी है, तो इसकी बरकतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी रहमतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी अताएं जो ऊपर वादे हैं, इसकी हिफाजत, किफायत, किफालत, उसको इस नीयत से पढ़ें, गैबी निजाम आपकी तरफ ऐसे लौट के आएगा सोच नहीं सकते। 12 दिन का फैसला कर लें। और आज हम बैठ के इसका चिल्ला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पे गिड़गिड़ाते हैं, इस पे भिखारी बनते हैं। ठीक है, तवज्जो करेंगे। हमारा छल्ले का अमल है। छल्ला आपने हाथ में लिया, आपके पास है, सिर्फ शापर से निकालना जरूरी नहीं, शापर से निकालना जरूरी नहीं, इसका तरीका लिखा हुआ है। और ये आखिरी साल है आज, आइंदा साल फिर ये अमल नहीं होगा। ये आखिरी साल का अमल है, आइंदा साल नहीं होगा। इसको हाथ में लेके दिल की गहराइयों से दिल में पढ़ेंगे, या वहाब, पढ़ें दिल से। बाकी इसका तरीका लिखा हुआ है आपके पास। हरूफ तहज्जी का अमल रोजाना करते हैं, आपके पास कागज है, हरूफ तहज्जी का नक्श है, और इस नक्श को रोज पुर करते हैं जाफरानी स्याही से। किस्मत वाले, नसीब वाले, मुकद्दर वाले इस अमल में मुसलसल शामिल हो रहे हैं। आज का हर्फ सीन है। कुरान में 6802 मरतबा ये हर्फ आया है, और इस हर्फ की बहुत ताकत और तासीर है। इस हर्फ के बहुत ज्यादा कमालात हैं। हर्फ सीन पढ़ते हुए इस नक्श को पुर करेंगे, अपनी मुरादें लिखें, अपनी आसें लिखें, अपनी उम्मीदें लिखें, लिखना शुरू करें। और फिर इसका हिस्सा फाड़कर मटके में डालेंगे, और जो बाहरले मुल्क वाले हैं वो किसी आटे में डाल के झील, दरिया, नहर में डालें।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بابرکت عمل ہے یہ حروف، سارا قرآن انہی حروف سے مل کے تو بنا ہے، ساری دعائیں انہی حروف سے مل کے تو بنی ہیں، سارے اسماء حسنہ انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، سارے سلام انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، اور سارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حروف سے مل کے بنے ہیں۔ اس ہر حرف میں طاقت، ہر حرف میں قوت، ہر حرف میں انوکھی تاثیر ہے اور انوکھا کمال ہے۔ آئیں گٹھلیوں والا عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ سالہ سال سے لاکھوں کروڑوں دفعہ کلمہ، قل ہو اللہ، درود، اعمال، تسبیحات، ان گٹھلیوں کی برکت، ان گٹھلیوں کا گھر ہرگز نہ لے جانا، غلطی نہ کرنا، ان گٹھلیوں کو گھر ایک گٹھلی بھی ہرگز نہ لے جائیں، نہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، عمل الٹا نہ پڑ جائے۔ ان گٹھلیوں کو سامنے رکھیں گے بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں ہماری 15 لکیریں ہیں، 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45 ہو جائے گا، 45 بار ہم پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع ہو، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی خوف، کوئی امید، کوئی آس، کوئی دل کی فریاد، اس کا تصور کرتے ہوئے 45 بار پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو، پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد ان گٹھلیوں کو ہاتھ میں لے کے، ہاتھ مل کے پورے بدن پہ اس کی برکت مل دیں گے۔ پڑھیں۔ ماشاءاللہ، مبارک عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، بہت سعادت مند عمل ہے، اللہ کی رحمت سے بہت ہی حیرت انگیز عمل ہے۔ ایک دعا ہر دفعہ پڑھائی جاتی ہے، ہر 11 اور 12 کی درمیانی رات میں، نسلیں اللہ نے دے دیں، پھر ان نسلوں کو ولایت کا امام، سخاوت کا امام، تونگری کا امام، نور کا امام بنانے کے لیے ایک دعا ہے۔ ربنا حب لنا، پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے ولی بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، تونگر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور دولت مند بھی ہیں، کہ راز کیا ہے؟ کہا کوئی نماز ایسی نہیں جس کی اتحیات کی رب جعلنی کے بعد میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. کوئی نماز ایسی نہیں جس کی رب جعلنی میں اتحیات میں رب جعلنی کے بعد میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. آج آپ نے مل کے پڑھی اور انشاءاللہ آج کے بعد پڑھیں گے. رب جعلنی میں دعا پڑھیں گے. آج مل کے پڑھی. کس کی تاثیر، کون سی رات، کون سے لمحے، کتنا بڑا مجمع، آپ کیا لوٹ کے جا رہے ہیں، کیا بہاریں برکتیں پا کے جا رہے ہیں، کیا رحمتیں پا کے جا رہے ہیں. ابھی ہم بیٹھ کے یا بدیع العجائب کا وہ ذکر کریں گے جس کو صرف 1200 دفعہ پڑھیں فیصلے ہو جائیں. سوچو ابھی کتنے ہزار کتنے لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. یہ مجمع ہے. خواتین کی بلڈنگ بھری ہوئی ہیں، وہ مجمع ہے. اللہ کرے جنات بھی شاید ہوں گے، فرشتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مجمع میں مل بیٹھ کے پڑھنا. کیا برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا عطائیں ہیں. مجرمانہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کرنا کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو مجرم کہہ دیا اور میرے نام کو پڑھا، جا میں تجھے وہ دوں گا جو تیری نسلوں کو آباد اور شاد کر دوں گا. ہاں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے. عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے. مجرم بن کے سر جھکا کے، مجرم بن کے سر جھکا کے پڑھے اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر. آمین آمین. پتاشوں کا عمل ہے اور ایک خاص نقش ہے، چھوٹا سا ہے آپ کے پاس، چھوٹا سا نقش ہاتھ کا لکھا ہوا، بڑی جان مار کے، بڑی محنت کر کے، کوئی پرنٹنگ پریس سے نہیں نکلا ہوا، چھوٹا سا نقش ہے. اس میں ڈال کے پینا ہے ہو الشافی ہو الکافی ہو المافی. تسبیح خانہ کٹورے بھی دے، نقش بھی دے، پتاشے بھی دے، استقبال بھی کرے، کھانے بھی اللہ کھلائے، پینے بھی پلائے. واہ تسبیح خانہ، واہ تسبیح خانے نے تو میری آپ کی موجیں کرا دی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں اتنی تو ماں بھی خیال نہیں کرتی جتنا آپ کرتے ہیں.
वो एक बाबा जी थे, वो कहने लगे मेरा बिस्तर बैतुल खला में लगाओ, यहां इतने साफ सुथरे बैतुल खला है। हाँ, और ये खिदमत करने वाले कोई किराए के नहीं हैं। आप में जो हम जैसे बैतुल खला साफ कर रहे हैं, लंगर खाना धो रहे हैं, आपके खाने खिला रहे हैं, सारी रात आपके लिए सहरियां बना रहे और खाना पीना। अल्लाह अकबर। मुझसे कहने लगे अभी परसों हमारा मशवरा था कि जलेबी पतली हो, मैं कहूँ मेले वाली वाट वाली जलेब होवे। ये मेले वाला बंदा समझेगा लैंग्वेज, ये बर्गर वाले बंदे नहीं समझ सकते, इनको क्या पता, इन बर्गर वालों को क्या पता थे मेले दी वाट वाली जलेब होंदी क्या है। हाँ, वो असल खाने की होती है। कहते जलेबी पतली करें, मैं कहा ना करना। कहा पतली करेंगे ऊंची ज्यादा होगी, ज्यादा नजर आएगी। मैं कहा कोई बात नहीं, खर्चा ज्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं, वही खिलाता है वही पिलाता है, उसी की अता है। ना मालूम किसकी वजह से ये लंगर चल रहा है, ये तेरे ही दम से है रौनकें, ये तेरे ही दम से है रौनकें। हाँ, कहते पतली जलेब होती ना, पतली जलेब उठती ज्यादा है, उठती ज्यादा है, ज्यादा नजर आती है, और ये मोटी है, शीरा भी ज्यादा पीती है, खर्चा भी ज्यादा लेती है। तो मेरे मुखलिसीन उम्मत कहने लगे पतली कर दे। मैं कहा ना, ये मोटी रहने दे। अल्लाह करे ऐसे ये लंगर चलते रहे, हाँ सही के ये लंगर चलते रहें, और अल्लाह तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत और हर फितने से हिफाजत। ये पताशे का अमल नफिल पढ़ के पहले पिएंगे, फिर नफिल पढ़ेंगे, मुंह मीठा करके फिर नफिल पढ़ेंगे। ये उसमें डाल के घोल के इसका पीना है, और हर हर घोंट पे घोल घोल के, हर हर घोंट पे हुवल शाफी हुवल काफी हुवल माफी। और ये कटोरा यही है जो आपके पास मौजूद है, इसी में पताशे लेते जाएंगे, पानी डलवाते जाएंगे, इसी में पानी लेते जाएंगे, पताशे लेते जाएंगे और पानी डलवाते जाएंगे, इसी में। पहले ना बूढ़े दुआएं देते थे, उन दुआओं में एक ये भी था कि पताशे घोल घोल पी, ये दुआएं देते थे। आप बूढ़ों से पूछिएगा, बड़े दुआएं देते कि अल्लाह तुझे इतना बख्त दे, इतनी तवंगरी दे, इतना रिज्क दे, तू पताशे घोल घोल पी, पताशे घोल घोल पी। कोई मर्रे पावे जिवे मवाली गोल पतासे पीवे। वाह मौला वाह। ये मुझे अल्लाह अकबर। ओह तावीज़। हमारे पास मुशाहिदाती तहरीरें आई हुई हैं, मुखलिसीन ने लिखी हैं, बाहरले मुल्क की भी हैं, बहाल दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन्होंने भी अपनी तहरीरें भेजी हैं। इन तहरीरों को सामने रख के दुआ वाला अमल करेंगे, इन सब की मुरादें पूरी होंगी, इन सब की आसें पूरी होंगी। और अगला तहरीरों का अमल 27 की रात को होगा। अपने तजर्बे, अपने मुशाहदे, कोई नक्श, कोई तावीज़ का तजर्बा, किसी दम का तजर्बा, कोई तजर्बे हैं तिब्बी रूहानी, तफसील से लिखें, साफ साफ लिखें। अगले जो होगा इंशाअल्लाह ताला, अगला जो होगा वो अमल इन तहरीरों का वो 27 की रात को होगा। हमेशा 2 अमल होते हैं, एक 11-12 की दरमियानी रात में, एक 27 की रात में। 27 की रात की अभी से तैयारी करें, और इनके तमाम जितने आपने छल्ले वाले ये चीज़ों के पैकेज हैं, इनका हदिया 40 रुपए से 400 रुपए तक अपने मकाम पे कहीं दे दीजिएगा। 40 रुपए से 400 रुपए तक इसका हदिया देना है, अपने मकाम पे आपने दे देना है। अब आप तरतीब सुन लें, जरा मेरी दरख्वास्त तरतीब सुन लें। अभी हमने बैठ के या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी पढ़ना है, और डूब के पढ़ना है, डूब के पढ़ना है, और टूट के पढ़ना है, और बहुत यकीन और ध्यान से पढ़ना है। और जिसको ये नहीं आता पूरा, तो वो पढ़े या बदियो। क्या पढ़ेगा? या बदियो। बहुत तवज्जो से डूब के, टूट के, दर्द के साथ, गम के साथ
पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। उस करीम से मनवाना है, उस करीम से मनवाना है। दुनिया, रिस्क, इज्जत, सेहत, रूह, रूहानियत, अता, शिफा, शफकत, मेहरबानी, कलमा, कबर, वसी, नस्लों के लिए इज्जत, रिस्क, मुर्शिद, मुर्शिद की नस्लें, इस सारे निजाम के लिए आफियत, बरकत और अता। और दूसरी चीज मैंने अर्ज की है, 12 तस्बीहां सुबह शाम 12 दफा दरूद पाक, ये 12 दिन के लिए अमल है। और फिर 12 दिन के बाद इसकी अलविदाई दुआ भी होगी। और ये 12 दिन कल से शुरू होंगे। 12 दिन आज का हमने पढ़ लिया, कल से मुराद सुबह शाम। सुबह जो वक्त भी आपको सहूलत हो, शाम जो वक्त भी आपको सहूलत हो, सुबह जो वक्त सहूलत हो, शाम जो वक्त सहूलत हो, ये तस्बीहां 12 दिन के बाद इसकी अलविदाई दुआ तस्बीह खाने में होगी। 12 दिन के बाद अब ये तहरीरें सामने, इन पे अमल होगा, इनके लिए दुआएं होंगी। और दरूद पाक पढ़ के हमने पढ़ना है, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो। टूट के पढ़ें, अल्लाह को अपना दर्द दिखाएं, रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, आंसू बहा के पढ़ें और गिरिया और जारी से पढ़ें। जितना दर्द, जितना गिरिया, जितना जारी से पढ़ेंगे, उतना उसकी बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत, उतना उसकी बारगाह में अता और शफकत और मेहरबानी होगी। पढ़ना शुरू करें, तवज्जो है, ध्यान है, उससे लौ लगी हुई है, उसके दर्द में और उसके गम की कैफियतों में अपने आप को शामिल कर लिया और गम में डूब गए, दर्द में डूब गए, इंशाअल्लाह डूब गए। तो फिर लाइटें बंद करें, दरूद पाक पढ़ के पढ़ना शुरू करें, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल। या बदी अला जाए बिल खैर या बदी अला जाए, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी अला जाए बिल खैर या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी बिल खैर या बदी, या बदी या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए खैर या बदी। अल्लाह या बदी या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी। खैर या बदी, या बदी अला जाए बिल खैर या बदी अला जाए बिल खैर, या बदी अला जाए,
اللہ اللہ یا ولی یا ولی یا ولی یا یا ولی یا یا ولی 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 اللہ یا ولی ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کی راتیں، قبولیت کی راتیں۔ اللہ اللہ
بديع العجائب يا 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 بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب 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 بالخير بديع العجائب يا بديع العجائب يا بديع العجائب يا يا بديع العجائب 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 يا خير يا بديع العجائب يا بديع العجائب يا بديع العجائب يا بديع العجائب الخير يا بديع العجائب آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। ऐ सखी आका, इस आने वाले मजमे की मुरादें पूरी फरमा, मुरादें पूरी फरमा, मुरादें पूरी फरमा, आशे उम्मीदें पूरी फरमा, आशे उम्मीदें पूरी फरमा, और मुश्किलें हल फरमा, और परेशानियां दूर फरमा। इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा, बिन मांगे अता फरमा, औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अता फरमा, गुर्बत फक्र से बचा, तंग दस्ती से बचा, गुनाहों की जिंदगी से बचा, काली रातों काले दिल से बचा, काले दिल काली दुनिया से बचा, काले जादू काले लोगों से बचा, काले जादू काले लोगों से बचा, काले जादू काले लोगों से बचा। रहमत की बारिश फरमा, अता की शफकत फरमा, इस रोने और सिसकने वालों को कबूल फरमा, इस रोने और सिसकने वालों को कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी हाजिरी कबूल फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा, हमारी आमीन कबूल फरमा, हमारी आमीन कबूल फरमा। या बदी अला जाए बिल खैर या बदीओ, या बदी अला जाए बिल खैर या बदीओ, या बदी। अल्लाह इस कलिमात की बरकतों से हमें दुनिया आखिरत की सारी मुरादें अता फरमा, सारी मुरादें अता फरमा। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्सत दे दे, अहल लोगों को मुतवज्जह फरमा दे, अल्लाह फितने दूर कर दे, क़यामत तक के फितनों से बचा, रहमत और राहत अता फरमा। आने वाले मजमे की सब दुआएं कबूल कर। दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे, जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे, उन सब की मुरादें पूरी फरमा, उन सब की मुरादें पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की परेशानियां दूर फरमा। आमीन के मौके बार बार अता फरमा, और बरकतें भी हमेशा अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब आप हजरात कटोरे में पताशे लेकर उसको पिएंगे, हुवा शाफी हुवल काफी हुवल माफी। उसके बाद फिर 12 नफिल पूरी तवज्जो और ध्यान से इनफिरादी गिड़गिड़ा के पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करें जल्दी सोने की तरतीब और जल्दी उठने की तरतीब। 12 नफिल मुस्तकिल जो है वो पढ़ें, 12 नफिल मुस्तकिल पढ़ें और पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से पढ़ें। फौरन तशरीफ ले जाएं और बहुत खामोशी से, बहुत मोहब्बत प्यार से मिल बैठ के ऊपर बैठेंगे। जगह थोड़ी है, मजमा ज्यादा है, जरा मोहब्बत प्यार से, खामोशी से, जितनी मोहब्बत प्यार खामोशी होगी उतना उसकी अताएं होंगी। और 12 तस्बीहां या बदी अला जाए बिल खैर या बदी, सुबह शाम 12 दिन के लिए, सुबह शाम 12 दिन के लिए बहुत सख्त तवज्जो ध्यान से पढ़नी है, बहुत सख्त तवज्जो ध्यान से पढ़नी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।